Hello my dear student. Welcome back to my YouTube channel Sanvi Mathematics Classes. In the last lecture of class 8 you have seen the properties of the rational number. So this will be about continuation of that only. So we have talked about the sixth property. Today we are going to discuss the remaining property of the rational numbers. The next property is the multiplicative inverse. Multiplicative inverse, or we call it as what, the reciprocal also. Okay, reciprocal. Okay, reciprocal property. Now, and that's what, if you're having what a is what any rational number, by what you will what multiply, so that you will get the multiplicative identity element, that is what, 1. So by what you will multiply so that it becomes what, 1. So what will be that? That will be what, 1 upon a. It will be what, 1 upon a. Okay. So more specifically, if I take any rational number in the form of what, p by q, then by what number you are going to multiply so that it will be equal to what, 1. So what will be that? It will be what, 1 upon that number. So actually this will becomes what, q upon p. So q upon p is the multiplicative inverse of p by q, or we say the reciprocal of p by q is nothing but what, q by p. Okay, so this is the multiplicative inverse property. So let's try to understand this with the help of what, some example. Okay, so if I say find multiplicative inverse, I'm writing mi, multiplicative inverse of, let me write the first is, it is suppose 2 by 7. Okay, 2 by 7. Next, if I say minus 3 by 4, and third, let me take it as what, minus 2 1 by 5. So how you're going to find the multiplicative inverse? Let's do this. Okay, so in case of the first one, the multiplicative inverse of 2 by 7, as per the property, whenever it is in the p by q form, तो इसका multiplicative inverse जो होगा वो क्या होगा, 7 by 2 होगा. Okay, if I talk about the second one, the multiplicative inverse of minus 3 by 7, it will be what, 7 by minus 3, or you can write it as what, minus 7 by 3. Okay, now let's move for the next question. Multiplicative inverse of minus 2 1 by 5. Now what are you going to do first? This will be equivalent to, right, in the mixed fraction, minus as it is, 5 as it is, 5 into 2 is what, 10, 10 plus 1 कितना हो जाएगा, 11. So it is what, minus 11 by 5. So its multiplicative inverse will be minus 5 by 11. Okay, hope so you have understood this. This is called as the multiplicative inverse of minus 2 by 2 1 by 5. Now let's talk about the next property, which we call as what, the distributive property. Now distributive property of multiplication over, of multiplication over, first I will say it's over addition, multiplication over property, distributive property of multiplication over addition, and second I will say about the subtraction. Now what is this? Actually, when you say a is what, any rational number, okay, you're multiplying it with the another two rational number which are being connected by what, plus, means b plus c. This will be equal to, क्या होगा यहाँ पे, a इंटू क्या होगा, b, एंड a इंटू क्या होगा यहाँ पे, c,
इन बिटवीन इट इज व्हाट प्लस, सो यहाँ पे जो साइन आता है वो क्या आता है आपका प्लस आता है. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. Similarly, over subtraction, A, B, C are three rational number. If you having what A into B minus क्या यहाँ पे C है, so it will be equal to क्या होगा यहाँ पे A into क्या होगा B होगा. In between it is what minus, so it will be what minus and A into what C. Okay, this is the distributive property of multiplication over addition, and this is called the over subtraction. Okay, let's try to do the example based on the both property. Now for example, if you get verify distributive property, verify distributive property, I'm writing specifically which you're going to verify. So A into B plus C is nothing but what A into B plus A into C. This you need to verify. For let me take A is equal to 1 by 2. This is one rational number. B is equal to 1 by 3. This is another rational number. And C is equal to what? 1 by 4. This is the third rational number. Okay. So how you're going to do it? First, I will consider the left hand side of the verification which you have been asked. Okay. So left hand side of this property is what? A into in bracket B plus C. Okay. Now take the value of what A is given as what 1 by 2 into next B is what 1 by 3 plus C is what 1 by 4. So take this. Now according to BODMAS, what will you solve first? First bracket will be what solved. So I will write 1 by 2 as it is into. So now what is the LCM of 3 and 4? Those who don't know, please I am doing it for you कि LCM कैसे लेते हैं. यहाँ पे पहले दोनों नंबर्स कोई सी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, पहले 3 से डिवाइड करेंगे, ये 4 एज इट इज रहेगा, फिर किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और यहाँ पे 1 1 आ जाएगा. इसका मतलब क्या है कि एलसीएम जो है 3 और 4 का वो कितना आएगा आपका 12 हो जाएगा. ओके, नाउ टू मेक दिस इक्विवेलेंट, what we'll do, we'll multiply this particular with what 4 and this with what 4, multiply or divide. और इसको करने के लिए क्या करेंगे बच्चा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से ही डिवाइड करेंगे. सो व्हाट यू विल फाइंड ओवर हियर, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4, हियर यू विल गेट व्हाट 3. सो सिंप्लीफाइड इट फर्दर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 by 2 into 4 plus 3 is what 7 divided by what 12. Okay, now the final answer will be what? It will be what? 7 into 1 is what? 7, and 2 into 12 is what? 24. So this is the left hand side of your distributive property. Now let's move to the right hand side. So right hand side will be A into what B in between plus A into what C. Now the value of A is 1 by 2, the value of B is 1 by 3 plus 1 by 2 again because A value of A, and C is given as what 1 by 4. So it's a multiplication. So multiplication will be what 1 into 1 will be what 1, and 2 into 3 is what 6. In between sign plus as it is. Now 1 into 1 is what 1, and 2 into 4 is what 8. Again in the same methodology, take out the LCM of what 6 and 8. So there is a one common number which is what dividing both number, that is what 2. So 2 3 से कितना होता है 6 होता है, और 2 4 से कितना होता है 8 होता है. अब किसी से कॉमन डिवाइड नहीं होंगे तो सेपरेटली सिंगल नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और जो डिवाइड नहीं होता वो सेम वैसे ही कॉपी करते हैं. ठीक है. सो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा. सो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू कितना होगा 4 होगा, और ये कितना होता है दिस इज नथिंग बट व्हाट 24. सो द एलसीएम ऑफ 6 and 8 is nothing but what 24. Next, what we are going to do, we would need to make the numerator as what 24. Okay, denominator as what 24. So we'll multiply this by 4, and this is by what 4, and this will be what multiply by 3, और इसको भी डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से भी किसको 3 से, क्योंकि 8 3 जो 24 होता है और 6 4 जो कितना होता है 24. So
the numerator will become is a 4 और यहाँ से क्या बचेगा आपका 3. So it is coming out to what 7/24. So what I get from here कि my left hand side is nothing but what right hand side. Okay, so what I can say, hence this property is what verified, hence verified. Okay. Okay, now let's do the verification for the distributive property over subtraction with the same given numbers. Okay. Okay, now we are going to verify the distributive property over subtraction. So this is your property, and I'm going to verify for three rational number. One is 1/2, another is what 1/3, and next is what 1/4. Okay, so pay attention. So if I consider the left hand side is nothing but what a into b minus c. Substitute the value of what a b c. a कितना है 1/2 है multiplied by b कितना दिया है यहाँ पे it's a 1/3 minus c कितना है 1/4. ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा this will be what 1/2 as it is, क्योंकि पहले हमारा क्या सॉल्व होना चाहिए ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए. सो मल्टीप्लाइड. अब ये ब्रैकेट में क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन है. सो टेक द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4. 3 और 4 के एलसीएम कितना आता है जस्ट हमने अभी निकाला था. इट इज व्हाट 12. तो एक मेक द इक्विवेलेंट. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से डिवाइड. तो दिस विल बी व्हाट 4 माइनस ये किससे मल्टीप्लाई होगा आपका 3 से. तो 3 इन 3/3. सो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, सो दिस विल बी योर सिंप्लीफिकेशन. अब यहाँ पे ये 1/2 इंटू 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 हो गया और डिवाइडेड बाय क्या होगा 12. सो यू विल गेट इट एज व्हाट 1/12 into 2 is what 24. This is the left hand side. Okay, now talking about the right hand side. Right hand side यहाँ पे क्या है right hand side is nothing but what a into b minus क्या है a into c है. अब a की वैल्यू कितनी है 1/2 है, b की वैल्यू कितनी है 1/3 है, माइनस a की वैल्यू फिर से 1/2, c की वैल्यू कितनी है 1/4 है. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. सो दिस मल्टीप्लिकेशन विल बी व्हाट 1 ऊपर वैसे ही रहेगा. 2 इंटू 3 कितना होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना होगा दिस विल बी व्हाट 8 और ऊपर क्या रहेगा आपका 1 रहेगा. ठीक है, अभी प्रीवियस में ही हमने फाइंड किया था 6 और 8 का एलसीएम. 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24 होता है. इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए 6 से कितने के इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद व्हाट 4. इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे. इसको किससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे. तो न्यूमरेटर में आएगा 4 माइनस 3. सो 4 माइनस 3 ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इट इज व्हाट 1/24. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितना आया था 1/24. राइट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है हमारा 1/24. इसका मतलब क्या है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया. सो कैन आई से this is verified. तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी verified होगी. Hope so you have understood this particularly. Please make sure that if you are understanding my teaching, make sure that you are not leaving the video incomplete, and make sure that you are sharing it among your friend and liking this and subscribe my channel. Okay, so now let's move with the another concept. Okay, now let's start with the next concept, that is what the representation of what rational numbers. Representation of what rational numbers on the number lines. Okay, in the previous class you have learned how to represent the integers on the number line. In the same way, in this class you will learn how you're going to represent the rational numbers on the number line. Okay, there will be what two cases which I'm going to consider. Okay, so first case is what when the numerator is what less than the denominator. The first case is what when the numerator is what less than the denominator, and the second case is what when the numerator is what greater than the denominator. Okay, so we are going to learn it by in some simple steps. Okay, so first case I am considering when your numerator is what less than the denominator. Okay, with the help of the steps I will explain. Okay, I will write one side the steps and next side one example so that you can understand in a better way. Okay, so what is the first, when you find that
कि your numerator is what less than the denominator. So this implies your fraction numerator by denominator lies between lies between 0 and 1. This is very important. Okay, so when your numerator is what less than denominator, so the number numerator upon denominator means your rational number will always lies between 0 and 1. Next step is what? Next step is what? Divide 0 and 1 into d इक्वल पार्ट्स, जो भी डिनोमिनेटर है उसके d इक्वल पार्ट्स, d इक्वल पार्ट्स. ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल, इफ आई से रिप्रेजेंट 2/3 ऑन नंबर लाइन. ठीक है, माय फर्स्ट स्टेप, मेरा न्यूमरेटर यहाँ पे कितना है 2 है, डिनोमिनेटर मेरे यहाँ पे क्या है 3 है. सो 2 इज लेस देन डिनोमिनेटर, 2 is less than 3, so this implies your numerator is what less than what denominator. Okay, so what this implies, so numerator less than, so your number 2/3 lies between which numbers 0 and 1. किसके बीच में लाई करता है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा. उसके बाद हमारा स्टेप क्या था, हम नंबर लाइन में जो हमारा मेन पार्ट है उसी को सिर्फ हमें विजुअलाइज करेंगे. ये मेरी नंबर लाइन हो गई. ठीक है, नंबर लाइन पे यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या हो गया 0. ठीक है, और क्योंकि देखिए मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बेटर आप कितने कितने सेंटीमीटर का, यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक आप कितना करिए 1 सेंटीमीटर लीजिए, फिर यहाँ से अगेन नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर लीजिए और नेक्स्ट क्या 1 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा 1 लिखूंगा. मैंने ये पहले ही कर लिया. क्यों कर लिया बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो कितना है आपका 3 है. इसका मतलब 0 और 1 को आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 0 से लेकर के 1 तक का जो डिस्टेंस आएगा वो आपका कितना आएगा बेटा 3 सेंटीमीटर कंसिडर करिए. ओके, फिर 1 से आगे जो भी नंबर होगा 2, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो ये डिस्टेंस भी आपका कितना होना चाहिए बेटा 3 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है, स्केल से प्रॉपर बनाना है आपको. ओके, ये समझ में आगे होगी बात आपको. तो जैसा कि मैंने बोला 0 और 1 को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था 3 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था. ओके, तो अब ये जो नंबर होगा ये हमारा होगा 0 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 1/3 होगा. ये जो होगा ये हमारा जो होगा वो क्या होगा 2/3 होगा, और ये 3/3 मतलब क्या हो जाता है 1 हो जाता है. अब आपको देखना है आपका नंबर क्या था. नंबर क्या था यहाँ पे, नंबर आपका जो रिप्रेजेंट करना था वो था 2/3. मतलब ये जो पर्टिकुलर नंबर है इट इज योर नंबर, रिक्वायर्ड नंबर. मैं इसको सिंबल ए से डिनोट कर सकता हूँ या फिर सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज योर 2/3. Hope so you have understood this. Okay, so let's me take some other example also. Okay, so that you will understand it a better way. Take second example, representation of what I am saying what 3/5. Okay, क्या करना है 3/5 को रिप्रेजेंट करना है. 3/5 को रिप्रेजेंट करना है तो अब ये कैसे करेंगे हम. ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 3/5 है, न्यूमरेटर आपका कितना है यहाँ पे 3 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है 5 है. सो ऑब्वियस हो गया कि न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से क्या है छोटा है. तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा गिवन नंबर है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, इट लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1 ओनली. तो 0 और 1 के बीच में ही वो लाई कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, अभी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ये हमारी हो गई नंबर लाइन. तो हमारा जो मेन रिप्रेजेंटेशन है वो किसके बीच में है हमारा, इट इज बिटवीन 0 एंड 1 ओनली. तो मैं कंसिडरेशन सिर्फ उतना ही पार्ट करूंगा 0 और देखिए 1. अब देखिए मुझे पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो कितने पार्ट में, वो कितना है आपका 5 है, तो इसको मुझे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ना. तो नंबर लाइन पे आप स्केल से क्या करिए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर के बाद में ही लगाइए कितना 1, कितना 5 सेंटीमीटर के बाद में लिखिए 1. ओके, और हर एक इसको कितना डिवाइड करना है आपको 5 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो हर एक 1 सेंटीमीटर के बाद में यहाँ पे आप मार्क करिए 1 2 है ना,
फिर क्या हो गया 3, और फिर आपका यहाँ पे क्या होगा 4। पार्ट में हो गए 1 2 3 4 और 5, ये 5 इक्वल पार्ट्स में करना है, ठीक है। तो 5 इक्वल पार्ट्स में करना है, स्केल से जब करेंगे आप प्रॉपरली वो होगा, ठीक है। अब पहला जो नंबर है यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 बाय, ये क्या होगा आपका 1/5 होगा, क्या होगा ये हो जाएगा आपका 1/5। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा 2/5, नेक्स्ट क्या होगा 3/5, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे 4/5, और लास्ट 5/5। 5/5 कितना होता है आपका 1 होता है। हमें जो रिप्रेजेंटेशन पूछा था वो किसका पूछा है 3/5, तो इसमें ढूंढिए 3/5 कहाँ पर है, 3/5 एज व्हाट ओवर हियर। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया कौन सा नंबर बेटा 3/5। ओके, होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलरली। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि अगर यही हमारा नेगेटिव में आया होता, तो मतलब अगर मुझे बोला होता कि रिप्रेजेंट करना है आपको -2/3 ऑन नंबर लाइन, अगर आपको नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या चेंजेस होंगे, अब ध्यान से समझ लीजिए। तो आप भी सिर्फ आपको क्या करना है, पहले माइनस साइन को इग्नोर रखिए सिर्फ, ठीक है। अभी आपका न्यूमरेटर कंसिडर करिए, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है 2 है, और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 3 है। अगेन मेरा न्यूमरेटर क्या है लेस देन क्या है आपका डिनोमिनेटर है। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या है कि नंबर विच लाइज बिटवीन व्हाट 0 एंड 1, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन जो हमारा रैशनल नंबर है दैट इज व्हाट -2/3, ये लाई करता है कहाँ पे, लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा, इट विल बी व्हाट -1 एंड 0। ये चेंजेस होगी, ठीक है। नेगेटिव में होगा तो मतलब आपका क्या हो जाएगा 0 के लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये आगे कैसे रिप्रेजेंट होगा। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज योर नंबर लाइन। मेरा मेन फोकस जो है वो कहां पर है बेटा 0 और -1, तो मैं 0 और -1, तो देखो यहाँ पे यहीं से आपको सोच लेना है कि कैसे स्केल लेना है। यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 0 के बाद में -1 जो है वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, इट शुड बी व्हाट एट 3 सेंटीमीटर, और इसके बाद वाला जो है वो 3 सेंटीमीटर के बाद होना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो इधर भी आगे भी लिख सकते हैं इसको, ये डिस्टेंस ये भी कितना होगा 1 की तरफ जो होगा वो भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर पे ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो है 0 और -1 के बीच में, तो हम बात करेंगे सिर्फ इस पर्टिकुलर इंटरवल के बारे में। तो अब हम इसको क्या करने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो पहला जो आएगा यहाँ पे इट विल बी वॉट -1/3 आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा -2/3, फिर यहाँ पे क्या आता -3/3, -3/3 कितना हो जाता है आपका -1। सो पर्टिकुलरली अब हमें देखना है कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना था। यहाँ पे क्या था आपका -2/3, तो -2/3 कहाँ पर है यहाँ पे, तो ये मेरा नंबर हो गया कौन सा -2/3। सो ये दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट दी नेगेटिव रैशनल नंबर। चलिए वैसे ही सिंपल, आपको अगर ये समझ में आया तो हम क्या करते हैं, आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी नेगेटिव में लेते हैं। ओके, तो अब हम जो नंबर लेते हैं नेक्स्ट, जैसा कि आप इफ़ आई से व्हाट -4/7, कितना किया मैंने -4/7, तो ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अभी हम सिंपल वही तरीका है। आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा क्या है वो चेक करेंगे विदाउट साइन, वो है 4, डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 7, सो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव होता तो 0 और 1 के बीच में लाई करता, क्योंकि नेगेटिव है तो ये जो हमारा रैशनल नंबर है -4/7, ये कहाँ पे लाइज करेगा, लाइज बिटवीन, किस नंबर के बीच में लाई करेगा -1 एंड 0 के बीच में लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा 0 और -1। तो हम नंबर लाइन बना देंगे अभी। ओके, ये नंबर लाइन हो गई आपकी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितना पार्ट मुझे रिक्वायर्ड है नंबर लाइन पे सिर्फ उतना ही मैं कंसिडर करूँगा। सो नंबर लाइन पे पहले सपोज करिए कि यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करता हूँ, मैं यहाँ पे 0 कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, अब बात करेंगे कि यहाँ पे -1 कितने डिस्टेंस पे है। देखिए आपको जो डिनोमिनेटर है वो कितना है आपका 7 है, तो
जीरो के बाद में डायरेक्टली कितने डिस्टेंस पे लीजिए आप -1, वो लीजिए आप 7 सेंटीमीटर पे। कितने पे लेना है आपको? 7 सेंटीमीटर पे। ओके। और क्योंकि हमें अब इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1 सेंटीमीटर पे आपका इजीली मार्क हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर के बाद लगाइए, ये नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर के बाद लगाइए, ये नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर के बाद, ये नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर के बाद। तो कितने पार्ट करने हैं आपको? 7 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और ये 6 और 7। ठीक है, स्केल से 1 सेंटीमीटर प्रॉपर करिए, आपका ये समझ में आ जाएगा फिर और इजीली। तो यहाँ पे अभी हमारा नेगेटिव सिर्फ साइन रहता है, तो -1 बाय क्या होगा यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या होगा -2/7, फिर होगा -3/7, फिर होगा -4/7, फिर होगा -5/7, फिर होगा -6/7, और ये जो होगा वो क्या होगा -7/7, जो कि कितना होता है -1 होता है। अब जो हमें पूछा था वो देखिए, वहां पे क्या पूछा था हमें, इट इज बीइंग आस्क्ड टू रिप्रेजेंट दी -4/7, -4/7, तो ये हमारा -4/7, ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज व्हाट -4/7। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके नाउ, ओके लेट्स टॉक अबाउट दी व्हेन द न्यूमरेटर इज व्हाट ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। चलिए अब बात करते हैं जब न्यूमरेटर आपका क्या हो, डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ ताकि आपको ये बेटर अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, आप चाहें तो स्टेप्स साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि मैंने दिया होता आपको 7/3। क्या दिया होता? 7/3। सो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो कितना है? 7 है, और डिनोमिनेटर जो है वो कितना है बेटा? 3 है। ओके, न्यूमरेटर इज व्हाट 7 एंड डिनोमिनेटर इज व्हाट 3। सो व्हाट विल डू नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें पता है कि न्यूमरेटर बड़ा है, तो जो मेरा फ्रैक्शन है, जो मेरा फ्रैक्शन है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी मिक्स फ्रैक्शन। क्या करना पड़ेगा इसको? मिक्स फ्रैक्शन में। जिनको नहीं पता है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पे 7 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। 3 2 जा कितना होता है? यहाँ पे 6 होता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? कैरी 1 बचेगा। अब इसको लिखते कैसे हैं? मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले तो जिससे ने आपको डिवाइड किया है वो वैसे लिखेंगे। तो डिवाइड किससे किया था आपने? 3 से। यू आर डिवाइडेड इट बाय व्हाट? 3, तो 3 विल कम इन द डिनोमिनेटर। ओके, रिमाइंडर विल कम इन द न्यूमरेटर। और जो आपका यहाँ पे क्वोशंट आया है, सो वट एवर यू गॉट द क्वोशंट, इट विल कम ओवर हियर। सो means this 7/3 in the max fraction, it will be what? 2 1/3। क्या होगा ये? 2 1/3। ठीक है, तो पहले हमने कंपेयर कर लिया, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो पहली स्टेप क्या है हमारी? कन्वर्ट इट इनटू दी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हम बात नहीं करेंगे कि ये कहां पे लाई करेगा। सो नाउ दिस 7/3 लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे क्या है आपका? ये 2 आया। सो दिस विल बी गोइंग टू लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अगर पॉजिटिव है तो, पॉजिटिव है तो किसके बीच में लाई करेगा? 2 एंड 3, 2 के बाद वाला नंबर। अगर सपोज नेगेटिव होता तो ये कहाँ पे लाई करता? 2 से पहले क्या था? 1, तो इट विल लाइज बिटवीन व्हाट? 1 एंड 2। ठीक है, अब ये नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, तो ये हमारी नंबर लाइन होगी। अभी this is my number line, because my number is lying between what? 2 and 3, so my focus will be only between 2 and 3 of the number line. So I will write what here? 2। अब देखिए इसको मुझे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर जो होता है उतने इक्वल पार्ट्स में 3 में। तो मैं यहाँ 2 के बाद में जो 3 नंबर आएगा वो कितने डिस्टेंस से लूंगा मैं? 3 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट जो 4 होगा वो भी 3 सेंटीमीटर पे। अगर इससे पहले के 1 की बात करूँ तो वो भी कितना होगा आपका? 3 सेंटीमीटर पे ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए मार्क कर लीजिए अभी 3 इक्वल पार्ट्स में, तो 1 सेंटीमीटर के बाद में आपकी स्केल के अकॉर्डिंगली आ जाएगा बेटा। ओके, तो ये जो नंबर होगा अभी, दिस विल बी व्हाट? 2 1/3, 2 1/3। नेक्स्ट जो होगा ये क्या होगा? 2 2/3। और नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा? 2 3/3, जो कि आपका हो जाएगा क्या? एग्जैक्टली 3। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब हमें जो चाहिए था वो चाहिए था 7/3, बट 7/3 क्या है? 2 1/3। सो 2 1/3 कहाँ पर है? यहाँ पर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? द नंबर 7/3। होप सो you have understood this particularly. Okay, so we'll do more example based on this.
ओके, सो टेक वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। मैं बोलता हूँ रिप्रेजेंट -6/5 ऑन नंबर लाइन। अभी नेगेटिव लिया मैंने ताकि आपको नेगेटिव वाला भी समझ में आ जाए। ठीक है, सो मैंने पहले बोला है इग्नोर दी साइन। न्यूमरेटर आपका क्या है, यहाँ पे 6 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 5 है। सो न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन क्या है, डिनोमिनेटर है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट दिस इनटू दी मिक्स फ्रैक्शन। अभी देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन रखिए और माइनस साइन आपका हमेशा बाहर ही रहेगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है और ये मिक्स फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन में करने के लिए ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो 6/5 मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, इट विल बी वॉट 1/5 हो जाएगा। ओके, नाउ ये माइनस साइन है, माइनस साइन बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या होगा -1 और यहाँ पे 1/5। अब ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन आपकी कहाँ होगी, ये आपकी ये एक नंबर लाइन है। ओके, पहले बताइए मुझे, ये नंबर लाइन पे ये जो फ्रैक्शन है, ये आपका जो रेशनल नंबर है, ये कहाँ पे लाई करेगा। सो दस एम्प्लाइज कि ये आज आपका जो है -6/5 लाइज बिटवीन, कहाँ पे लाई करेगा ये, इट विल लाइज बिटवीन। मैंने पहले ही बताया था बेटा कि यहाँ पे -1 है, तो इसके लेफ्ट में नेगेटिव है ना बेटा, तो इसके लेफ्ट में कौन सा होगा, -2। सो इट विल लाइज बिटवीन वॉट, -2 एंड -1। तो हमारा फोकस जो रहेगा नंबर लाइन पे, इट विल बी वॉट बिटवीन -2 एंड -1। चलिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा कितना है, इट इज़ वॉट -1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इसका क्या है, 5 है, तो इसको 5 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं -2 की जो पोजीशन लिखूंगा वो 5 सेंटीमीटर के बाद लिखूंगा। तो याद रखें, ये जो डिस्टेंस होगा आपका स्केल से मेजरमेंट करके कितना रखना है आपको, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद वाला जो -3 आएगा वो भी कितने के बाद आएगा, 5 सेंटीमीटर के बाद ही आएगा। चलिए इसको इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में। सो लेट मी डिवाइड इट, 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पे 4 एंड 5। ठीक है, नाउ 10 विल बी वॉट, -1, 1 अपॉन क्या होगा, ये 5 होगा। ये होगा -1, ये होगा 2/5, ये होगा -1, यहाँ पे आएगा 3/5, और इसके बाद में ये होगा -1, यहाँ पे आएगा 4/5। अब जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, व्हाट इज दैट, ये जो -6/5 है, इट्स इक्विवेलेंट टू व्हाट, -1/5। तो ये कहाँ पे आ रहा है हमारा, दिस इज व्हाट ओवर हियर। तो ये मेरा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ -6/5। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस आल्सो। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए, आप इजीली उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, okay, now we are going to talk about the next particular concept, very important concept, that is what finding rational numbers between any two numbers. ठीक है, thus you need to understand कि on number line there are what infinitely many numbers between any two numbers. कोई भी अगर number lines लेता हूँ मैं, if I take what any number line and you take any two numbers, then there are what in between, I may take any two number, negative, positive, whatever. So the numbers between them, there are what, infinite many rational numbers. There are what, infinite many rational numbers between any two numbers. ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे, मतलब इन्फिनाइट अनगिनत नंबर होते हैं। तो अब उसमें से कुछ पर्टिकुलर नंबर्स ही आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अब उसके दो मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड्स जो हैं उसके दो मेथड है। ठीक है, मेथड टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। पहला जो मेथड है वो है आपका एलसीएम मेथड। ठीक है, और जो सेकंड मेथड है वो है एवरेज। ठीक है, वो है एवरेज मेथड। ठीक है, ध्यान रहे बेटा कि ज़्यादातर आपको एलसीएम मेथड ही यूज़ करना है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ बीइंग मेंशन्ड पर्टिकुलरली इन द क्वेश्चन। जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब तक आपको एलसीएम मेथड से ही करना है। उसका रीज़न भी आपको समझ में आएगा व्हेन वी आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर विद द एवरेज मेथड। कोई भी चीज़ जब हम रैशनल नंबर की जब फाइंड करेंगे हम रैशनल नंबर्स, तब आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए बात करते हैं हम बेटा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन से बात करेंगे, समझेंगे इसको, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि फाइंड 5 rational numbers, 5 rational numbers between 1/3 and 1/2, ये दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अभी देखिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले मान लीजिए यहाँ पे पहला जो नंबर है वो है आपका 1/3, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा इट्स अबाउट 1/2। नाउ सी द केयरफुली डिनोमिनेटर ऑफ व्हाट बोथ, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं। तो पहला काम हमारा क्या है, वे मेक द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर व्हाट सेम, दोनों भी डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है। तो वो सेम करने के लिए क्या लेते हैं, वी टेक द एलसीएम ऑफ व्हाट 2 and 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। सो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, आई विल राइट द इक्विवेलेंट, ठीक है, इनका इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड। तो यहाँ पे 6 करने के लिए क्या कर चाहिए, 2 चाहिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो ये फाइनली कन्वर्ट होगा आपका 2/6 में। ओके। वैसे ही अगर बात करें हम नेक्स्ट के, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा आपका 3/6। अब नेक्स्ट स्टेप ऑब्जर्व क्या करना है बेटा, कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, मीन्स जस्ट नेक्स्ट आ गया। सो विल नॉट एबल टू फाइंड दी 5 रैशनल नंबर्स, हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट विल डू, कि इसको 5 रैशनल नंबर्स अगर आपके पूछे हैं तो इसका हम और इक्विवेलेंट फॉर्म लिखेंगे, ताकि हम कम से कम 5 रैशनल नंबर तो फाइंड कर सकें। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में देयर आर व्हाट इन्फिनिट, लेकिन हमें सिर्फ कितने पूछे, 5। तो वो 5 निकालने के लिए आप जितना भी नंबर यहाँ पे दिया उसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से ही क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 12, और ये कितना होगा आपका 36। सेम वैसे यहाँ पे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे डिवाइड बाय क्या होगा 36 होगा। ओके। अब ये आपको समझ में आएगा, दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है कि 1/3 का जो इक्विवेलेंट है वो 12/36 है, और 1/2 का जो इक्विवेलेंट है वो 18/36 है। सो मैं अभी लिख लेता हूँ ये नंबर। देखिए पहला जो नंबर था 1/3, 1/3 इज इक्विवेलेंट टू वॉट 12/36, ठीक है। और 1/2 का मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्पसफुली, मैं बताऊंगा आपको क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं। ये क्या आएगा आपका 18/36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों के न्यूमरेटर्स हैं, दोनों का न्यूमरेटर्स इसका कितना है 12 है, और यहाँ पे क्या है 18 है। तो अगर मैं न्यूमरेटर इंक्रीज करूँगा डेफिनेटली इट विल बी इन बिटवीन दैम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13/36, तो ऑब्वियस है इसके बाद ही होगा। फिर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 14/36, ऑब्वियसली इसके बाद होगा। फिर लिखता हूँ यहाँ पे 15/36, फिर लिखता हूँ मैं यहाँ पे 16/36, फिर लिखता हूँ 17/36, और उसके बाद क्या आएगा 18। तो मुझे कितने नंबर पूछे थे बच्चा, मुझे पूछे थे 5 रैशनल नंबर्स। तो ये 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो ये पर्टिकुलर जो नंबर्स जो मैंने ब्लू से लिखे हैं, these are what the 5 rational numbers which is lying between what 1/3 which is equivalent to 12/36 and 1/2 which is equivalent to what 18/36. Hope so you are very clear with this concept also. Okay, now we'll try to understand the same concept with the help of the average method. ठीक है, वहां पे मैंने 5 रेशनल नंबर्स फाइंड किए थे, बट यहाँ पे मैं थोड़े कम ही फाइंड करूँगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं 3 रेशनल नंबर्स बोलता हूँ। ठीक है, उसका रीज़न बताता हूँ क्योंकि आपको ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो, उससे इंपॉर्टेंट इज व्हाट कंसेप्ट, सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 1/2 बाय एवरेज मेथड। मैं पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे इस बाय एवरेज मेथड। ठीक है, एवरेज मेथड। तो अब ये मेथड कैसे काम करता है, एवरेज का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। एवरेज का मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर्स, अगर मैं सपोज जैसे आपके मार्क्स का एवरेज निकालना है, सपोज 5 सब्जेक्ट्स दिए, तो 5 सब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, हम जितने ही मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं आपके, सपोज हिंदी में कितने हैं 41 हैं 50 में से, फिर उसके नेक्स्ट में मैथ्स में सपोज क्या है 45 हैं,
फिर हिंदी में अगर मैं बोलता हूँ 46 हैं, और फिर मैं अगर बोलता हूँ एसएसटी में आपके क्या हैं 45 हैं, और फिर आपके कोई और सब्जेक्ट है सपोज साइंस है उसमें आपके क्या हैं सपोज उसमें भी 45 हैं। तो जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करते हैं हम उनके मार्क्स जो ऐड करते हैं और उतने नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 से हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये होता है एवरेज। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कितने रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे सिर्फ 2 रैशनल नंबर्स है और उनके एवरेज मेथड से हम फाइंड करेंगे। तो ऐसे समझ लीजिए कि नंबर लाइन पे कहीं तो भी ये लाई करते हैं, समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पर है। देखिए 1/3 है और कहीं यहाँ पे क्या है 1/2 है। मैं एग्जैक्टली इनके सेंटर में जो होगा वो एवरेज होगा, मतलब इसका मीन होगा, उसको मैं A1 से डिनोट करता हूँ। अब ये A1 आएगा कैसे, तो A1 जो आएगा वो एवरेज मेथड से कैसे आएगा, एवरेज किसका लेंगे हम, ये दोनों नंबर्स का। तो ये दोनों नंबर्स का एवरेज क्या आएगा 1/3 प्लस क्या करेंगे 1/2। ओके, तो अब इसका एवरेज कैसे आएगा, ये तो दोनों नंबर का एडिशन हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे बच्चा, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। सो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम आपको पता है कितना आता है 6 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आएगा, यहाँ पे इट विल बी व्हाट 2, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3। ये पूरा डिवाइड कर रहे हैं किससे हम, इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय व्हाट 2। तो 2 + 5 कितना, 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया। ये 5/6 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपका 2। अभी देखिए यहाँ पे ये 5/6 है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता हूँ तो ये उल्टा हो जाता है, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाता है, या फिर क्या होता है इसका इन्वर्स हो जाता है। आपने फाइंड करना सीखा है इन्वर्स कैसे होता है, मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। तो जिसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 5 × 1 = 5 होता है और 6 × 2 कितना होता है 12 होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो A1 था वो आपका क्या आ रहा है 5/12 आ रहा है। ध्यान रहे, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 5/12 आ रही है। ओके, चलिए अब आगे समझते हैं इसको। चल, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे एक और रैशनल नंबर चाहिए। एक ये तो हमारा फाइंड हो गया 5/12, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक और चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये जो नंबर है आपके जो नंबर लाइन है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो आएगा उसको मैं कर रहा हूँ किससे रिप्रेजेंट A2 से, और इन दोनों के बीच में जो आएगा उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे A3 से। सो नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट A2, मैं किसका एवरेज लूंगा, जो हमारा अभी पहले जो आया है 5/12, और किसका लूंगा बेटा 1/2 का। तो समझिए यहाँ पे इसको इससे, ठीक है। जो मेरा A2 आएगा अब वो मैं कैसे लूंगा, किसका एवरेज ले रहे हैं हम, एक 5/12 जो कि हमने फाइंड किया है, और आपका राइट साइड में जो नंबर था 1/2 एवरेज ले रहे हैं। तो ये दो नंबर्स का एडिशन और डिवाइड बाय क्या करते हैं 2 करते हैं। ओके, तो फिर से समझिए, अभी अभी 2 और 12 का एलसीएम कितना है यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका ये 6 आ जाएगा, क्योंकि इक्वलेंट करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। और ये डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 5 + 6 कितना हो गया 11 हो गया, डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे 12। नाउ टू चेंज दिस इनटू मल्टीप्लिकेशन, ये आपका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1/2। So this will become 11/24. So I got the value of what my another rational number which is lying between what your given numbers, ये वैल्यू हमारी निकल गई। ओके, अब वैसे ही अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, आई एम फाइंडिंग दी A3। मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ अब A3 जो है मेरा वो किसके बीच में लाई कर रहा है, देखिए ऊपर मैंने नंबर लाइन पे बताया था A3 जो लाई कर रहा है 1/3 और किसके बीच में लाई करेगा 5/12। सो ऑब्वियस है ये 1/3 और 1/2 के बीच में भी लाई करेगा। सो हम कंसिडरेशन जो करेंगे वो ये दो नंबर्स का करेंगे, ठीक है, फॉर दी एवरेज मेथड। तो समझिए इसको अभी। ओके, तो A3 में आपका एक नंबर क्या है आपका 1/3 है, और दूसरा नंबर क्या है आपका A1 है जो कि क्या है 5/12 है। ओके, इनका एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय क्या होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए। तो ये सिंप्लीफाई करिए, अभी देखिए 12 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, अगेन 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा आपका 4, और यहाँ पे कितना आएगा 5, ठीक है। 3 4 जो 12 होता है, 4 × 1 कितना होता है 4 होता है, ठीक है। 4 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 1 × 5 कितना होगा 5।
ओके, होप सो दिस बेसिक कंसेप्ट्स आर व्हाट वेरी क्लियर टू यू। अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा, स्पेशली दी एलसीएम मेथड्स। ओके, चल ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट विल बी व्हाट 9/12। अब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या होता है 1 है 2/1, सो दिस विल बी व्हाट 1/2। सो दिस विल बी फाइनली कितना हो जाएगा 9/24। सो इट मीन्स यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरा एक रैशनल नंबर क्या था 1/3 था, और एक नंबर क्या था आपका 1/2। इन दोनों के बीच में जो दो हमने नंबर्स 3 नंबर्स निकाले, तो देखिए 1/3, पहला इसके सेंटर में जो नंबर निकाला वो हमने कितना निकाला था 5/12 निकाला। इसके और इसके बीच में 1/3 के बीच में जो निकाला हमने वो हमारा A3 था, मतलब क्या हो गया ये 9/24। ठीक है, अब इसके बाद 5/12 और 1/2 के सेंटर में जो निकला था वो E2 था, और E2 की वैल्यू कितनी है आपकी 11/24। ठीक है, सो ये हमारे क्या हो गए 3 रैशनल नंबर्स हो गए, जो कि हमने किससे फाइंड किए बच्चा, एवरेज मेथड से। होप सो यू आर क्लियर विद दी कंसेप्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर में यही सिर्फ आपके कंसेप्ट्स हैं एक्चुअल में। ठीक है, बाकी तो आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, please, if you like this video, if you understood some little bit of my teaching, please like it and share it among your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.